Good morning, students. Today we discuss apsidal distances, and articles based on these. Apse is a point on a central orbit at which radius vector drawn from the center of force to this point has maximum or minimum value. एप्स क्या है? एप्स एक पॉइंट है सेंट्रल ऑर्बिट पे at which radius vector जो हम ड्रॉ करते हैं center of force to this point means the point on the central orbit मीन्स जो हम रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, रेडियस वेक्टर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर ऑफ फोर्स से एट एनी पॉइंट ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट, इफ that distance is maximum or minimum, then that point on the central orbit is called an ellipse. What is apsidal distance? Distance between ellipse and center of force. जो हमने रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया सेंटर ऑफ फोर्स और सेंट्रल ऑर्बिट पे जो पॉइंट था उसको ज्वाइन करने के लिए हमने एक रेडियस वेक्टर यूज किया. उस रेडियस वेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं? Distance between an ellipse and center of force is called apsidal distance. Next definition is apsidal angle. The angle between two consecutive apsidal distances. दो consecutive apsidal distances के बीच में जो angle होगा उसको हम क्या बोलेंगे? apsidal angle. Theorem है at an ellipse the particle moves at right angle to the radius vector. कि ellipse पे particle जो है वो radius vector के perpendicular मूव करता है, और we can say at an ellipse radius vector is perpendicular to the tangent. From the definition of ellipse, apsidal distance r is maximum or minimum. अभी हमने ellipse की definition पढ़ी थी. So if r is maximum or minimum, then u is also minimum or maximum because u is equal to 1 by r. इनमें reciprocal correlation है, that's why. And du by d theta is equal to 0 क्योंकि u की वैल्यू कांस्टेंट होगी. अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? 0. एंड फॉर एनी कर्व वी हैव 1 by p square is equal to u square plus du by d theta whole square. ये रिलेशन आपको पता है. where p is the length of perpendicular from origin to the tangent at any point to the curve. And du by d theta is 0, so 1 by p square is equal to u square, and we can say 1 by p square is equal to r square, so we get p is equal to r, and we know p is equal to r sin phi. Value no pata hai. So using this result r sin phi is equal to r, we get sin phi is 1, so angle phi is 90 degree, और angle phi 90 degree है तो इसका मतलब at an ellipse the particle moves at right angle to the radius vector, or we can say radius vector is perpendicular to the tangent. You know, phi is the angle between the radius vector and the tangent. Remark है at an ellipse dr by d theta is 0, du by d theta भी 0, phi angle कितना होता है? 90, p क्या होता है आपका? r. The direction of motion is at right angle to the radius vector. जो definition थी what is an apsidal distance and apsidal angle, and this article very important. ये short question answer में भी आता है, आपको अच्छे से करना है. जो next article है वो इसका हम theoretical proof है, हम ये proof नहीं करेंगे, हम next करेंगे क्योंकि कुछ mention नहीं आता है कि proof कौन सा करना है. हम इसका analytical proof करेंगे कि when central acceleration varies as some integral power of the distance, then there are at most two apsidal distances. Means f central acceleration कैसे vary कर रही है? some integral power of distance, means f is equal to lambda r raised to power n. You can say lambda is constant of proportionality, so f is equal to lambda by u raised to power n, and the differential equation of the path is this in polar orbit, polar coordinates. H square into u plus second derivative of u with respect to theta is equal to f by h square u square. Now putting the value of f is lambda by u raised to power n, so ये बन गया lambda upon u raised to power n plus 2. Now multiplying both sides by 2 du by d theta. जब हमने इसको multiply किया दोनों साइड तो आ गया 2 du by d theta into h square into this term is equal to 2 du by d theta into this. h square हमने कॉमन निकाला तो क्या बन गया? ये 2u du by d theta plus 2 du by d theta into second derivative of u with respect to theta is equal to 2 lambda u raised to power
minus u की पावर माइनस n प्लस टू डी यू बाई डी थीटा. नाउ इंटीग्रेटिंग, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर. यू कैन चेक, ये इसका डेरिवेटिव है. यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट किया. फिर हमने रिजल्ट लगाया. एट एन एप्स डी यू बाई डी थीटा इज 0, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपकी, एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हमने डी यू बाई डी थीटा को 0 पुट किया हुआ है. फिर हमने यहाँ से एच स्क्वायर कैलकुलेट किया. एच स्क्वायर निकालने के लिए यू स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे. ये आपके पास यू की पावर माइनस एन प्लस थ्री सी वन बाई यू स्क्वायर. नाउ पुटिंग यू इज इक्वल टू 1 बाई आर. यू को 1 बाई आर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. तो ये आपके पास आ गया एन प्लस वन बाई टू लेमडा एच स्क्वायर. ये एन प्लस वन बाई टू लेमडा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, माइनस आर रेज़ टू पावर एन प्लस थ्री प्लस दिस वैल्यू. ये हमने रीअरेंज कर लिया, एक ही तरफ टर्म्स हमने शिफ्ट कर ली. तो जो ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 चेंजेस ऑफ साइन. आप देख रहे हो इन द कोफिशिएंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ c1 एंड n. c1 और n की हर वैल्यू के लिए दिस इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 चेंजेस ऑफ साइन. ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 चेंजेस ऑफ साइन है. ठीक है. सो बाय डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, दिस इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ r. और 2 पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ r मीन्स 2 रियल रूट्स आएंगे इसके, एट मोस्ट 2. और r के 2 पॉजिटिव रूट्स आने का मतलब देयर आर एट मोस्ट 2 एप्साइडल डिस्टेंसेस. बिकॉज r यहाँ क्या शो कर रहा है, एप्साइडल डिस्टेंस, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंगली हमने डी बाई डी थीटा को 0 पुट कर दिया है. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल है वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी. ये आर्टिकल का डेफिनेशन है. ये वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगी ये, कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर अ सेंट्रल फोर्स, द वेलोसिटी दैट इट वुड एक्वायर इफ इट इज मूव्ड फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी. जब एक पार्टिकल मूव करता है सेंट्रल फोर्स के अंदर, तो जो वेलोसिटी वो एक्वायर करेगा कहाँ से कहाँ तक आने में, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. और इन्फिनिटी पे वो जो है रेस्ट पे है आपका, मीन्स वो रेस्ट से मूव कर रहा है उस पॉइंट तक. तो जो वो वेलोसिटी एक्वायर करेगा उस वेलोसिटी को हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. क्योंकि जो उसने मूव करना स्टार्ट किया वो कहाँ से स्टार्ट किया, इन्फिनिटी से. लेट अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स F per unit mass, means F is the central acceleration, acquire a velocity v at a distance a. से हमने क्या assume कर लिया, v velocity acquire कर रहा है distance a distance पर from the center of force after starting from rest at infinity. Now pedal equation of central orbit हमने use की, h square by p cube dp by dr is equal to m. Now integrating this equation, इंटीग्रेट करने के लिए dr को हमने राइट साइड पर शिफ्ट किया, फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया. और दिस वैल्यू v इज इक्वल टू एच बाई पी, ये हमें वैल्यू पता है. तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हमारा वी स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी आर प्लस सी. नाउ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एनर्जी इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट. सिंस द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम रेस्ट एट इंफिनिटी एंड एक्वायर द वेलोसिटी v at r is equal to a, so the velocity from infinity is given by half of v square is equal to minus, स्टार्ट कहाँ से किया हमने, इन्फिनिटी से, और कितने डिस्टेंस तक आया, r इज इक्वल टू a तक. तो हमने जस्ट इसको क्या करते हैं, इन्फिनिटी टू a में इंटीग्रेट कर दिया. तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी. क्लियर है स्टूडेंट्स. ये आप आर्टिकल्स और डेफिनेशंस अच्छे से कर लेना, बाकी न्यूमेरिकल्स हम लास्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.